आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ جس دیس کو انگریز کے پنجے سے چھڑایا، اس دیس کی مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا۔ کیوں خون شہیداں کا صلہ ہم نے گنوایا، ساحل پہ لگی بیڑی کو طوفان میں اتارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ معصوم لہو دیتا ہے رو رو کے دہائی، برباد ہوئی جاتی ہے ایمان کی کمائی۔ اللہ سے بغاوت ہے یہ بندوں کی خدائی، اب قہر خداوند سے بچ جاؤ خدا را۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ سر جس کے لیے قوم کے مردوں نے کٹائے، عزت کے گوہر بیٹیوں بہنوں نے لٹائے۔ اسلام کی توقیر پہ گھر بار جلائے، کہلاتا ہے تخریب وہی دین کا نعرہ۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ سوچا تھا جہاں لائیں گے اسلام کا دستور، مختار لٹیرے ہیں وہاں ظلم پہ معمور۔ قانون بھی خاموش ہے، انصاف ہے مجبور، سچائی پہ شب خون ہے پھر جھوٹ نے مارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہر سمت مچی لوٹ ہے رشوت کی دہائی، کمزور کا حق چھین کے خوبیش اڑائی۔ جو عہد کیا اس کی ہی بنیاد ہلائی، طاغوت اشاروں پہ رچا کھیل ہے سارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہم لوگ پلٹ سکتے ہیں طوفان بلا کو، پاؤں سے کچل سکتے ہیں فتنوں کی وبا کو۔ جرت سے مٹا سکتے ہیں ہم مکر و ریا کو، سر کفر کا قدموں میں جھکائیں گے دوبارہ۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ ہے دل میں تڑپ غربت و افلاس مٹا دیں، مزدور کو دہقان کو محنت کا صلہ دیں۔ حالات کے مارے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیں، دکھلائیں مساوات محمد کا نظارہ۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔
بدل سکتے ہیں حالات کا دارا. ہم قاسم و محمود کی غیرت کے امی ہیں، ہم خالد و زرار ہے طارق کا یقین ہے، پرواز ہے شاہین کی گو خاک نشیں ہیں، افضال فلک بوس ہے ہر عزم ہمارا. ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا. اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا. 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 ہم لوگ بدل سکتے. یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا، میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا. یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا، میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا. میں بیماروں کی تیمارداری کروں گا، میں مفلسوں کی مددگاری کروں گا. مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. مجھے عیدی سبننا ہے، مجھے عیدی سبننا ہے. مجھے عیدی سبننا ہے، مجھے عیدی سبننا ہے. مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. میں فرقوں کی نہ طرفداری کروں گا، میں اللہ کے حکم پر ہی چلوں گا. میں فرقوں کی نہ طرفداری کروں گا، میں اللہ کے حکم پر ہی چلوں گا. جس نے ایک انسان کو بچا لیا، اس نے پوری انسانیت بچائی ہے. میں بیماروں کی تیمارداری کروں گا، میں مفلسوں کی مددگاری کروں گا. مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. مجھے عیدی سبننا ہے، مجھے عیدی سبننا ہے. مجھے عیدی سبننا ہے، مجھے عیدی سبننا ہے. مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا، میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا. یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا، میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا. میں بیماروں کی تیمارداری کروں گا، میں مفلسوں کی مددگاری کروں گا. مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. مجھے عیدی سبننا ہے، مجھے عیدی سبننا ہے. مجھے عیدی سبننا ہے، مجھے عیدی سبننا ہے. مجھے انسان
इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। का किया जा रहा है यहाँ पर, ये और कौन कर रहा है? ये आमदार साहब ने ये वॉल कंपाउंड 1 करोड़ का मंजूरी करके काम शुरू करा दिया इसका। ये विकास निधि में से आमदार साहब ने विकास निधि में से ये करा के लाए। तो इसका यानी वॉल कंपाउंड करे बाद क्या करेंगे? ये वॉल कंपाउंड करने के बाद इसका गार्डन का प्रोग्राम साहब का है प्लान, इसके अंदर एक गार्डन बनाएंगे ऐसा। तो ऐसे कितने वॉल कंपाउंड आस पास में करे? इस एरिया में 2 वॉल कंपाउंड आमदार साहब ने कराया मंजूर, जिसमें से ये 1 करोड़ का काम जो कि चालू है, और एक इससे पहले आपको दिखाया मैं 31 लाख का कंपाउंड वॉल, वो अपना स्टोन मैसनरी वर्क का है रबर काम में, इसके पीछे सुल्तानिया मदरसे के पास। और ये सुल्तानिया मदरसे के सामने ये RCC वर्क वॉल कंपाउंड चालू है, ये 1 करोड़ का काम है। आपके शहर के आमदार जो है वो कैसा काम कर रहे हैं शहर में? बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज तक कोई आमदार ने अभी तक ऐसा काम किया नहीं जो आमदार और डॉक्टर फारूक साहब कर रहे हैं। ऐसा तो आप लोग खुश है उनके काम से? बहुत खुश है, और हम भी खुश है, और पूरे दुनिया शहर के आवाम खुश है। ये काम का हमने आमदार साहब को 6 महीने पहले निवेदन दिए थे कि भाई मुसलमान जो लेडीज़ रहती वो गैरों के इलाके में गार्डन पे जाती जिससे तकलीफ आती, तो आमदार साहब को हमने निवेदन दिए थे कि हमारे को लेडीज़ का गार्डन बनाना है। तो आमदार साहब ने फ़ौरन इसको पास करा 1 करोड़ की निधि से, और आएगी भी 5 करोड़ की निधि डालने वाले, जिससे अपनी जो माँ बहनें वो ना बाहर जाते हुए अपने इलाके में ही आके वो जो भी अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती है, बच्चों को खिला सकती है, 1-2 घंटा अपना टाइम यहाँ पे कर सकती है, कुछ वर्किंग वगैरह ऐसा। तो आमदार साहब हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और ऐसा ही नहीं कि अपने इलाके में, गैरों के इलाके में भी जाके हमारे आमदार साहब का, गैर लोगों के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि अपने लोग, गैरों के इलाके में भी बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। हर तरीके से उनका सपोर्ट कर रहे हो, और अपने इलाके तो माशाल्लाह कर ही रहे हो। सुल्तानिया मदरसे का एक गार्डन था जो बनाने का था मदरसे के बच्चों के वास्ते, वो 10-15 साल से सब आमदारों ने आश्वासन दिए पर किए नहीं थे। आमदार साहब को हमारी टीम ने और मदरसे के जिम्मेदारों ने जाके निवेदन दिया, और आमदार साहब ने फ़ौरन 31 लाख से चालू कराए, 31 लाख की निधि वॉल कंपाउंड। और वहाँ का रोड का काम कितनी किया? आमदार साहब ने किए 30 लाख की निधि से रोड और गटर का काम, आज तक किने किए नहीं हो काम। मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। जिसने एक इंसान को बचा लिया। ये शहर के आमदार डॉक्टर फारूक शाह कैसे काम कर रहे हैं दुलिया शहर? दुलिया शहर एक विकास से पिछड़ा हुआ शहर है। मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बताऊंगा कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ साहब के जो काम चालू है, दुलिया के विकास काम जैसे सुशोभीकरण है। अभी पिछले टाइम यहाँ पे बहुत बड़ा एक हादसा हो गया था, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। इमीडिएटली हम शिष्टमंडल लेके आमदार डॉक्टर अलहाज फारूक हाजी साहब को जाके मिले, शिष्टमंडल लेके कि डॉक्टर साहब ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो यहाँ पे एक ब्रेकर होना बहुत ज़रूरी है। तो तुरंत आमदार साहब जो है वो हमारे साथ आए, और फ़ौरन उन्होंने जो जो संबंधित खाता था वो खाते वालों को उन्होंने बुलाया, और उनको कहा कि मेरे को इमीडिएटली यहाँ पे रैम होना, और इसको प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ भी सुविधा मुहैया करा सकते हैं वो इमीडिएटली मुझे आज के आज ऑन द स्पॉट जगह पे करा के देना है। तो जैसे आमदार साहब ने ऑर्डर किए अधिकारी और कर्मचारी लोग को, तो हमारे दुलिया शहर के अधिकारी और सुसज्जन कर्मचारी लोगों ने फ़ौरन आके एक्शन लिए, और यहाँ पे ब्रेकर भी बनाए, और ब्रेकर बनाने के बाद अभी ये सुशोभीकरण का काम चालू है। माशाल्लाह इससे हमें उम्मीद है कि 5 साल जो साहब को यहाँ पे लोगों ने दिए और हम सब ने मिल के यहाँ पे दिए, तो दुलिया का बहुत सारा विकास इसमें हमको नज़र आ रहा है, और हर चीज़ से अल्लाह कामयाबी दे रहा है। ये गुल मोहर वाला रोड है, डॉक्टर फारूक शाह के फंड से बना हुआ। गुल मोहर से फांसी पुल तक के ये रोड जाता है, डॉक्टर फारूक शाह के फंड से ये बना तामीर किया गया है।
किसने पूरी इंसानियत बचाई है। मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है। मुझे ईदी सा बनना है। मुझे ईदी सा बनना है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। इसी पुल से ये रोड वापस से स्टार्ट होकर अब्दुल हमीद चौक तक के जा रहा है ये रोड। ये भी रोड आमदार निधि से बना हुआ है। ये रोड ऐसा बताया जा रहा है कि सैयद अब्दुल हमीद चौक वहाँ तक के जाता है ये रोड। ये भी डॉक्टर फारूक शाह के फंड से तामीर किया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है ये। आप देख सकते हैं सर्कल तक के, सैयद अब्दुल हमीद सर्कल तक के, और ये झाड़ आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से इसकी एंट्री बनाई गई है। ये सैयद अब्दुल हमीद मार्ग है, सैयद अब्दुल हमीद चौक है। ये आप देख सकते हैं शेवाई फाटा ना, शेवाई गाँव का फाटा। हाँ गाँव शेवाई। इधर गए सीधा सीधा। अनजान शाह की दरगाह के पास ये ब्रिज है। ये पूरे ब्रिज को रिपेयर किया गया है डॉक्टर फारूक शाह के फंड से। महात्मा फुले मार्ग तक ये इसको रिपेयर किया गया है। आमदार फंड से चालू है, एमएलए फंड से। कौन से एमएलए? ये अपने डॉक्टर फारूक शाह साहब। कौन सा एरिया है? ये दुलिया देवपुर गली नंबर 5। यहाँ पे आमदार साहब काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़िंदगी में हमको पहली बार मालूम पड़ा कि ये एमएलए फंड के निधि से एरियो के अंदर काम होता है। ये सब जगह काम हो रहा है कि सिर्फ ये गली? नहीं, पूरा टोटल उधर सामने के इलाके में भी, इधर ये पाँचों गली, उधर पीछे के मेन एरिया में सब तरफ काम हो रहा है। देवपुर कब्रस्तान का भी काम चालू है। अल्लाह के एहसान करम से देवपुर कब्रस्तान के पास में एक पुल की समस्या थी, साहब ने वो भी उनके हिसाब से
91 लाख रुपए की निधि दे के और वो पुल का भी काम करा रहे हैं। मतलब जब जनाजा जाता था तो पानी आने की वजह से जा नहीं पाता था। अभी वो काम भी उन्होंने माशाल्लाह अल्लाह के एहसान करम से चालू करा दिया उन्होंने। जुड़िए हुए लोगों का आमदार साहब के बारे में क्या बोलना? बहुत खुशी है और सब हर कोई खुश हो रहा है साहब के काम से, कोई नाराज़गी नहीं है। इतना अच्छा और इतना बढ़िया काम किने करा नहीं आज तक। एरिया को क्या नाम से जाना जाता है? देवपुर मोमिन बाड़ा। आमदार साहब तो पहले ऐसे आमदार है जो बिना इसके काम हो रहे हैं। अभी तक इतने आमदार है गली मोहल्ले में ऐसे काम हुए नहीं थे। हमारे आमदार साहब हर तरफ काम कर रहे हैं और अब के वार्डों में ज़्यादा काम हो रहे हैं।